Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Janab Speaker, we bow our heads before Almighty Allah, who has blessed Pakistan. Blessed Pakistan with a military victory over India, with a diplomatic victory over India, and with a narrative victory over India. Before I speak on the budget and the responsibilities the Prime Minister entrusted me and my committee post-war on the diplomatic and narrative front, I must turn to our neighborhood, to what's happening in Iran. After decades of pushing the same lie that Iran is days away from developing nuclear weapons, a claim that the Israeli Prime Minister made in 1996, in 2001, in 2003, in 2007, in 2010, in 2012, in 2023, in 2024, आखिरकार 2025 में जनाब स्पीकर इन्होंने इजराइल ने और इनके रेजीम ने इस झूठ की बुनियाद पे ईरान पे हमला किया है. हमें इस हमला का मजम्मत करते हैं. Iran's sovereignty was violated in violation of international law. Military leadership was targeted not on the front lines or on a battlefield or in a war room, but while they slept in their homes in apartment buildings, resulting in the loss of not only their lives, but in the loss of lives of the innocent civilians in Iran. Not only were military leadership targeted, but scientists were targeted, Janab Speaker. Journalists and media institutions have been targeted, Janab Speaker. And sabse bharkar, the most egregious attack is that in violation of international law on nuclear facilities. Any attack on a nuclear facility is not just a potential nuclear attack on Iran. For खुदा ना खास्ता अगर उस nuclear facility को नुकसान के नतीजे में कोई लीक होता तो उसका नुकसान सिर्फ ईरान तक महदूद नहीं होता. It would have consequences for all neighboring countries in the region, including Pakistan. तो हम इसको सख्ती से इस बॉम्बिंग को, इस हमला को का मज़म्मत करते हैं. Yesterday, Janab Speaker, yesterday, the United States conducted a more expansive attack on Iran's nuclear sites, and the Israeli government is forcing the United States public into a war that the people of the United States do not support, once again based on a lie. The same lie that was peddled before the American public before the Iraq war in 2003. Today it is claimed that Iran is the one with weapons of mass destruction. We strongly and vociferously condemn the US strikes, and I call on the government to mobilize their foreign minister, who should try and create a group of like-minded foreign ministers who not only oppose this conflict, but who are at risk, severe risk to themselves, their people, if heaven forbid any of these strikes on nuclear facilities were to result in a nuclear leak. We must emphasize that an attack on nuclear facilities cannot be tolerated under any circumstances. Janab Speaker, there's a poem written in World War II or after World War II, which I'd like to first repeat to you and then rephrase in light of what we are currently experiencing. First, they came for the socialists, and I did not speak out because I was not a socialist.
Then they came for the trade unionists, and I did not speak out because I was not a trade unionist. And then they came for the Jews, and I did not speak out because I was not a Jew. And then they came for me, and there was no one left to speak out. ये एक पोम है, और जिस शख्स ने इस पोम को लिखा वो पहले उस रिजीम का नाजी रिजीम का एक हमायती था, फिर क्रिटिक बना, और आखिरकार उसको भी कंसंट्रेशन कैंप में डाला गया. इस अक्टूबर से लेके, since October last year, we've seen a genocidal, apartheid imposing, expansionist regime conduct an ever-expanding war, which has the potential to drag us all towards World War III. This time, first they came for the Palestinians, but the world did not speak out because they weren't Palestinian. Then they came for the Lebanese, but we did not speak out because we were not Lebanese. And then they came for the Yemenis, but we did not speak out because we're not from Yemen. And now they have come for Iran. If we do not speak out, Mr. Speaker, there will be no one left when they come for us. The Israeli regime's aggression across the region must be stopped. We want to see the day where we can all live in peace, and we can only start working towards that peace if the Netanyahu regime is stopped from its illegal war with Iran, forced to abide by the terms of its withdrawal and ceasefire in Lebanon, and end its apartheid and genocide on Palestinian lands. As it continues to bomb Iran, the world must not forget that this Israeli regime, this Netanyahu regime, is currently carrying out the forced starvation of Palestinians in the Gaza Strip. जनाब स्पीकर, हमारे खित्ते में भी एक नेतन्याहू का सस्ती कॉपी है, और मैं फख्र से कह सकता हूं कि हमने इस सस्ती कॉपी को जंग के मैदान में हरवा दिया, सफारतकारी के मैदान में हरवा दिया, और बयानिया के मैदान में हरवा दिया. वज़ीर आज़म साहब ने और सदर मुमलिकत ने मुझे और हमारे कमेटी को एक अहम जिम्मेदारी दी, और हम फख्र के साथ कह सकते हैं कि जहां हम गए, हमने पाकिस्तान का मौक़िफ़, पाकिस्तान का बयानिया पेश किया, और जहां जहां हम पहुंचे वहां पीछे पीछे उस सस्ती कॉपी का भी नुमाइंदे पहुंचे. वो भी अपना मुल्क का बयानिया, अपना मुल्क का मौक़िफ़ लेकर आए. हमारा बयानिया तो अमन का पैगाम था, बट पीस थ्रू स्ट्रेंथ. हम एक जंग जीत चुके थे, उनका 6 जहाज गिरा चुके थे, और हमारा मौक़िफ़ ये कि हमने सीज़ फायर तो हासिल कर ली, लेकिन जब तक इस खित्ते में हम मुस्तकिल अमन कायम नहीं करेंगे, तो ये ना पाकिस्तान के अवाम के मफाद में है, ना भारत के अवाम के मफाद में है. 3 अहम इश्यूज हैं जिस पे हमने आवाज उठाए. एक तो कश्मीर का मौक़िफ़, जो हमेशा पाकिस्तान के लिए एक अहम मौक़िफ़ रहा है. कश्मीर के अवाम के जो उम्मीदें हैं, जो उनका हक है, जहां तक यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशंस के मुताबिक, उस पे ना सिर्फ हमने बात की, मगर अगर आप पिछले हुकूमत का 2019 में जब कश्मीर का हमला हुआ और उनका वजीर आज़म यहां खड़ा था, मैं उधर बैठा था, और हम सब ने देखा कि उसकी रिएक्शन में हमारा वजीर आज़म साहब ने उस वक्त कहा कि मैं क्या करूं, आप क्या चाहते हो कि मैं भारत के साथ जंग छेड़ दूं? अगर मेरा अल्फाज आपको गलत लगे, आप वो रिकॉर्डिंग देख लें. रिकॉर्डिंग हम सब ने ये देखा कि वजीर आज़म साहब ने उठ के कहा कि मैं क्या करूं, आप क्या चाहते हो, मैं जंग छेड़ दूं. लेकिन मैं
फख्र के साथ कह सकता हूं कि इस दफा जब कश्मीर पे हमला हुआ, जब पाकिस्तान पे हमला हुआ, भारत के तरफ से हमला हुआ, तो पाकिस्तान डरा नहीं, झुका नहीं, हमने जंग की और वो जंग जीत चुके। जब पिछला हुकूमत का रद्द अमल ये था कि हम कश्मीर हाईवे को आज के बाद श्रीनगर हाईवे कह देंगे, जब पिछला हुकूमत का रद्द अमल ये था कि हर फ्राइडे को बाद नमाज जुम्मा पाकिस्तान के अंदर हम सब खड़े होके, जहां भी हम होंगे वहीं के वहीं खड़े होके कश्मीर के लिए आवाज उठाएंगे, इस हुकूमत का जवाब यह था कि इन कच्चे जहाज गिराएं, उनको मजबूर किए कि सीज़फायर हो। और जो इन खान साहब के हुकूमत के बाद भारत जोर और शोर से कहता था कि कश्मीर हमारा अंदरूनी मामला बन चुका है, अब बैनुल-अक़वामी ऑब्जर्वर्स हमारा ये टोर में मान रहे हैं कि ये तो एक आलमी इशू, इंटरनेशनल इशू बन चुका है। तो सबसे पहले सक्सेस ये है कि हमने कश्मीर कॉज को, जो माजी में अंदरूनी मामला में तब्दील कर चुका था, एक बैनुल-अक़वामी मामला बन चुका है। ये कश्मीरियों का सबसे बड़ा कामयाबी है कि यूनाइटेड नेशंस हो या यूनाइटेड स्टेट्स का सदर हो, वो सब कहते हैं कि मीडिएशन हो, बैनुल-अक़वामी इशू है। भारत भी बैनुल-अक़वामी इंटरनेशनल तक तो वो खुद नहीं पहुंचे अभी तक। वो ये जो उनका पुराना अल्फाज थे ना, अंदरूनी मसला, वो तो उससे पीछे हट चुके हैं। बैनुल-अक़वामी जहां बाकी दुनिया पहुंच चुके हैं, वो यहां तक तो नहीं पहुंचे। मगर भारत का अपना असेसमेंट यह है कि कश्मीर का मसला एक बायलैटरल इशू है, जिसपे हम पाकिस्तान भारत के दरमियान तय हो सकता है। और कश्मीर के हवाले से जनाब स्पीकर, जिस तरीके से जगह जगह, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस हो, यूनाइटेड स्टेट्स हो, यूरोपियन यूनियन हो, हर जगह एक ऐसा हमदर्दी है। इसलिए मैं समझता हूं कि दुनिया ये देख रहा है कि जो भी तरीक़ेकार इजराइल ने गजा में इंप्लीमेंट करने की कोशिश की, वैसा ही मोदी ने कश्मीर में करने की कोशिश की, और इसकी वजह से एक हमदर्दी पैदा हो रहा है। और मैं उम्मीद करता हूं कि हम ये जद्दोजहद जारी रखेंगे और इंशाअल्लाह ताला हम कश्मीर के अवाम को इंसाफ दिलवाएंगे। जो दूसरा सबसे बड़ा इशू जो सिंधु पे हमला हुआ है, जो भारत ने कहा है इस दहशतगर्दी का वाकया के बाद कि सिंतास मुआहिदा खत्म, और वो सिंतास मुआहिदा को इन अबायंस होल्ड कर रहे हैं ना। सबसे पहले ये तो गैर कानूनी है, इन अबायंस तो है नहीं। इंडस वाटर ट्रीटी इवन टुडे इज बाइंडिंग ऑन इंडिया एंड पाकिस्तान। मगर सिर्फ ये धमकी देना कि हम पाकिस्तान का पानी रोकेंगे, सिर्फ धमकी देना, ये धमकी ही यूनाइटेड नेशंस की चार्टर की खिलाफ वर्जी है। ये गैर कानूनी है, ये भारत नहीं कर सकता। इस धमकी पे अमल दरामद करने से अगर खुदा ना खास्ता भारत ये फैसला करता है कि इसने इस धमकी पे अमल दरामद करना है, तो हमने अभी इनको जंग में हरवाए हैं, हमें एक और जंग लड़ना पड़ेगा। और उस जंग के नतीजे में फिर जो 3 दरिया आज भारत के पास है और 3 दरिया पाकिस्तान के पास है, अगर वो हमारे 3 दरिया पे डैम बनाने की कोशिश करते हैं तो हमें फिर जंग लड़ना पड़ेगा। जनाब स्पीकर, वजीर आजम ने पहले से कह दिया है, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने पहले से कह दिया है कि अगर इन पे अमल दरामद होता है तो हमें जंग लड़ना पड़ेगा। तो हम इंशाअल्लाह ताला एक तो जंग नहीं लड़ना पड़ेंगे, लेकिन अगर वो मजबूर होते हैं और उनको जंग का अगर हमें
जंग लड़ना पड़ेगा तो फिर हम डिसरप्ट ना करें। हम जानते हैं कि हमारा एयरफोर्स, हमारे अफवाज जैसे अभी इनको इब्रतनाक शिकस्त दिलवाए, अगले आने वाले जंग में भी उस पोजीशन में है कि हम इनको इब्रतनाक शिकस्त दिलवाएं। तो भारत के सामने दो ऑप्शंस है जनाब स्पीकर, दो ऑप्शन। या भारत, देखिए ये पहले भारत से फंडिंग लेते थे और इसलिए आज भी चीख रहे हैं। मैं भारत के आफरीदी साहब, जब आपके मेंबरान बोल रहे थे कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा था। ये डोंट फोर्स मी टू टेक एक्शन, प्लीज डोंट डू दैट। नहीं जी, बात कीजिए, कोई जरूरत नहीं बात सुनने की। नहीं, आई डोंट नीड टू। जी बिलावल साहब, जहां तक भारत के लिए और मुल्क के अंदर जो भारत के सहूलतकार है उनके लिए दो ही ऑप्शंस हैं, दो ही ऑप्शंस। इन्होंने फाटा पे बात नहीं, मैं नहीं बात करने दूं। इनको फाटा पे बात करनी थी, मैंने करने दी। एक दफा दो दफा इन्होंने कहा एप्लीकेशन लिख के देनी, फाइनेंस मिनिस्टर साहब से मीटिंग इनकी अरेंज करा दी। अब ये प्रोसीडिंग्स अगर डिसरप्ट कर रहे हैं तो दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट एंड वेरी अनएथिकल। जी बिलावल साहब। एनीवे जनाब स्पीकर, आई एम हैप्पी टू इग्नोर देम। आप भी इग्नोर करें, अवाम भी उनको इग्नोर ही कर रहे हैं। मैं पानी पे बात करना चाहूंगा, भारत पे। भारत ने जो इस के बाद अब भारत के लिए दो ही ऑप्शंस हैं, दो ही ऑप्शंस। या वो सिंतास मुआहिदा मान ले, इंटरनेशनल कानून के मुताबिक अमल दरामद करे, उनका अवाम को अपना हिस्सा का पानी, हमारा अवाम अपना हिस्सा का पानी। अगर वो नहीं मानते सिंतास मुआहिदा को, डैम और कनाल्स निकालने की कोशिश करेंगे, तो फिर पाकिस्तान जंग करेगी और हम 6 के 6 दरिया के पानी अपने अवाम को दिलवाएंगे। तीसरा इश्यू जनाब स्पीकर, वो दहशतगर्दी का इश्यू है। और भारत ने यह कोशिश किया कि दहशतगर्दी का इल्जाम पाकिस्तान पे लगाए और उनका हमला को जस्टिफाई करें। इस मैदान में भी जनाब स्पीकर, मैं फख्र के साथ कह सकता हूं कि भारत हार चुका, पाकिस्तान जीत चुका। भारत का कोशिश ये था कि पाकिस्तान को बाकायदा एक टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर किया जाए। पाकिस्तान का नाम पाकिस्तान नहीं, टेररिस्तान से पुकारा जाए। वो चाह ये रहे थे कि चाहे वो फैटिफ हो, चाहे वो GSP प्लस हो, ये सारे जो फॉर्मूलाज हैं, इन फोरम्स में पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाए। इस हद तक इन्होंने कोशिश की कि पाकिस्तान को अपना IMF पैकेज ना दिया जाए, मगर हर महाज पे पाकिस्तान जीता, भारत हारा। पाकिस्तान जीता तो भारत हारा। आपने अपना IMF के सिलसिले में एक सियासी जमात ने इस मुल्क में माजी में हमारा IMF का प्रोग्राम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, वो नाकाम रहे। इस दफा भारत ने कोशिश की, वो नाकाम रहे। जहां हम गए जनाब स्पीकर, वहां तो पीछा भारत के नुमाइंदे आए। तो जब हम यूनाइटेड नेशंस में थे और हमने यूनाइटेड नेशंस के फोरम पे पाकिस्तान की आवाज उठाए और हमारा दहशतगर्दी के हवाले से मौक़िफ़ भी प्रेजेंट किया, भारत का भी पूरा कोशिश था कि उनका मौक़िफ़ प्रेजेंट किया जाए और पाकिस्तान को UN में वो साबित करे कि हम दहशतगर्द ममालिक हैं। मगर मैं सलाम पेश करना चाह रहा हूं पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस को, पाकिस्तान के सफीरों को, कि हमारा वहां निकलने के बाद जैसे ही पाकिस्तान और भारत का डेलीगेशंस न्यूयॉर्क से रवाना हो गए, तो पीछे क्या हुआ? यूनाइटेड नेशंस ने यह फैसला कर लिया कि जो भी कमिटीज यूनाइटेड नेशंस में हैं, जो दहशतगर्दी को देखते हैं, जो तालिबान को देखते हैं, वहां उन्होंने पाकिस्तान को मुंतखब किया कि आप पाकिस्तान इन कमिटीज का सरबराही करे और दहशतगर्दी का। तो यहां भी अक़वाम मुत्तहिदा में जनाब स्पीकर, पाकिस्तान जीत चुका है, भारत हार चुका है। उसके बाद जनाब स्पीकर, हम अमेरिका के दारुल हुकूमत
हम अमेरिका के दारुल हुकूमत वाशिंगटन डीसी पहुंचे। वहां इजराइल लॉबी के बाद अगर कोई बड़ा लॉबी है तो वो इंडियन लॉबी है, और वो इंडियन लॉबी, इजराइल लॉबी और भारत की कमेटी ने मिलकर पूरी कोशिश की कि पाकिस्तान को बदनाम करे, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाए और भारत की बयानिया को कहीं न कहीं से, स्टेट डिपार्टमेंट से, व्हाइट हाउस से, कांग्रेस में, किंग थिंक टैंक से, कहीं न कहीं से भारत का मौक़िफ़ को कोई न कोई सपोर्ट करे। मगर मैं फख्र के साथ कह सकता हूं जनाब स्पीकर कि हर महाज पे एक बार फिर भारत हारा, पाकिस्तान जीता। भारत कह रहा था कि हम दहशतगर्द हैं, हम दहशतगर्दी फैलाते हैं, और दुनिया उनके साथ है पाकिस्तान को इससे रोकने के लिए। जैसे जब हम उधर थे और फिर जैसे हम निकले, जो अमेरिका का अफवाज का अहम रहनुमा है वो अपना कांग्रेस का कमेटी से खिताब कर रहा था, और उस कमेटी का खिताब में उनका फौज ने यह कहा, अमेरिका के फौज ने यह कहा कि पाकिस्तान हैज बीन अ फिनोमिनल पार्टनर इन कॉम्बैटिंग टेररिज्म। तो ये भारत का बयानिया उनका हाउस में, उनका अफवाज की तरफ से, उनकी हुकूमत की तरफ से रद्द किया गया। वहां का जो स्टेट डिपार्टमेंट है, हमारा भी मुलाकातें हुए, उनके भी मुलाकातें हुए। उसके बाद मीडिया के इंटरैक्शन में उनका स्टेट डिपार्टमेंट के नुमाइंदे से सवाल पूछा गया कि क्या आप कश्मीर के कॉज में और भारत और पाकिस्तान का मसला में प्रेसिडेंट ट्रंप मीडिएट करने के लिए तैयार है? तो वहां भी उनका स्टेट डिपार्टमेंट का नुमाइंदा ने कहा कि जी हां, प्रेसिडेंट ट्रंप इस मसला का हल निकालने के लिए तैयार है। यह भी भारत की हार है, पाकिस्तान की जीत है। जनाब स्पीकर, इससे भरकर उसी आदमी, उसी शख्स पे जिस पे भारत में सबसे ज्यादा तंकीद हो रहा था, जिनके बारे में पता नहीं हमें क्या क्या सुनने पे मजबूर किया गया, झूठे बेबुनियाद इल्जामात, प्रोपेगेंडा, हमारा फील्ड मार्शल, आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ जनरल आसिफ मनीर साहब, उनका ना सिर्फ दावत था अमेरिका में जनाब स्पीकर, मगर उनको प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद व्हाइट हाउस में लंच खिलाया। अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, क्या ये किसी शिकस्त शुदा फौज को इस किस्म का दावत दिया जाता है? नहीं जनाब स्पीकर, ये मुबारकबाद देने का दावत था उस शख्स जो उस फौज का क़यादत कर रहा था, जिसने पूरी दुनिया की एक्सपेक्टेशंस के बरक्स, भारत जो से 7 गुना ज्यादा बड़ा ताकत है, भारत के हथियार और माल और वसाइल अमेरिका की तरफ से आते हैं, वो भारत को आगे जाके पता नहीं क्या क्या उम्मीदें रख बैठे थे। उस कामयाबी का सिलसिले में वो लंच, ना सिर्फ वो लंच हुआ, प्रेसिडेंट ट्रंप के जो भी बयानात है उस लंच के बाद, अब उस पर देख लें, वो आज भी नजर आ रहा है कि भारत का बयानिया, भारत हार चुके हैं, पाकिस्तान जीत चुका है, पाकिस्तान का बयानिया सामने है। आखिर जो दहशतगर्दी का इशू है जनाब स्पीकर, हम चाहते हैं कि जैसे हम इस मुल्क में दहशतगर्दी का मुकाबला कर रहे हैं, कि इस पूरे खित्ते से हम दहशतगर्दी का अगर हमने मुकाबला करना है तो वो नामुमकिन होगा अगर भारत और पाकिस्तान बात भी नहीं करेंगे आपस में। अगर दहशतगर्दी के सिलसिले में हमारा कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो पाकिस्तान में और भारत में ये दहशतगर्दी का मसला बढ़ता रहेगा। भारत का यह कोशिश है कि दहशतगर्दी को सियासी तौर पर इस्तेमाल किया जाए और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया जाए। और हमारा यूके और ईयू के दौरे के हिस्से में हमें यह पता लगा कि भारत का यह भरपूर कोशिश था कि फैटिफ, जब मैं वजीर खारजा था पाकिस्तान, फैटिफ की ग्रे लिस्ट से व्हाइट लिस्ट पे पहुंच चुका था और उसका एक रिव्यू चल रहा। तो भारत का पूरा कोशिश था कि इस लड़ाई के नतीजे में, इस जंग के नतीजे में, इसी राउंड में पाकिस्तान को व्हाइट लिस्ट से एक बार फिर ग्रे लिस्ट किया जाए। मगर मैं एक बार फिर हमारा फॉरेन ऑफिस को, हमारा वजीर आजम को और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि भारत नाकाम रहा,
उनकी तमाम कोशिशें नाकाम रहे और इस मैदान में भी पाकिस्तान जीत चुका, भारत हार चुका। मगर जनाब स्पीकर, हमें जहां तक सीज फायर की बात है और जहां हम आज पहुंचे इस पे, हम समझते हैं कि यह नाकाफी है। पाकिस्तान के नौजवानों के लिए, भारत के नौजवानों के लिए भी, इस खित्ते के लिए बहुत जरूरी है कि इन दोनों ममालिक के दरमियान अमन कायम किया जाए। जो न्यू नॉर्मल या न्यू अब नॉर्मल दैट मोदी इज ट्राइंग टू सेट फॉर द रीजन, कि अगर कोई दहशतगर्दी का वाकया भारत में होगा तो उसके नतीजे में ऑटोमेटिकली पाकिस्तान के साथ जंग छेड़ा जाएगा। और अगर पाकिस्तान ये पॉलिसी अपना ले कि हमारे यहां जितने दहशतगर्दी के वाकया होते हैं वो तो 10 गुना ज्यादा है भारत के मुकाबले में, आधा से ज्यादा इनके पीछे भारत का हाथ होता है या भारत का फाइनेंसिंग होता है, तो अगर पाकिस्तान में भी ये प्रेसिडेंट सेट किया जाए कि अगर यहां कोई दहशतगर्दी का वाकया होगा तो हम भी भारत के साथ जंग छेड़ेंगे, तो इसका मतलब ये होगा कि हमने अपने मुल्क का किस्मत और भारत ने अपना मुल्क का किस्मत इन दहशतगर्दों के हाथ में छोड़ दिया है। जनाब स्पीकर, यह मोदी का फैसला हो सकता है, यह हमारा फैसला नहीं हो। इस सिलसिले में जब हम अमन की बात कर रहे हैं तो हम ना सिर्फ पाकिस्तान के अवाम की जंग लड़ रहे हैं, हम भारत के अवाम का मुकदमा भी लड़ रहे हैं। मोदी का फायदा में जंग है, मोदी के फायदा में दहशतगर्दी है, मोदी के फायदा में ये सिंतास मुआहदा और ये सारे फैसले हो सकते हैं, मगर पाकिस्तान के अवाम का फायदा और भारत के अवाम का फायदा सिर्फ और सिर्फ अमन के सिलसिले में हो सकता है। जनाब इसमें हम नस्ल दर नस्ल कश्मीर पे लड़ते आ रहे हैं, दहशतगर्दी पे लड़ रहे हैं। अब वो चाह रहे हैं कि आने वाले नस्लों, नस्ल दर नस्ल पानी की जंग आपस में लड़े। ये हमारे लिए, मैं पाकिस्तान हुकूमत को प्रेज करना चाहूंगा कि आपका पॉलिसी ने हमारे हाथ को मजबूत किया है। जब हम दुनिया भर में जाके अमन की बात करते हैं तो कौन इनकार कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि आपका इस कोशिश, वजीर आजम साहब की इस कोशिश, अगर आप इसमें कामयाब हुए तो आपके ये कामयाबी तारीख याद रखेगी और ये मुमकिन है, ये आज भी मुमकिन है कि हम मिलकर मेहनत करें, इंटरनेशनल माहौल ऐसे बनाएं कि हम भारत को मजबूर करें कि वो पुराने पॉलिसीज छोड़ के अमन की तरफ आगे बढ़े। जनाब स्पीकर, जो दूसरा अहम मैदान है जिस पे पाकिस्तान अवाम खुद एक किस्म का जंग लड़ते आ रहे हैं, वो मुआशी महाज पे। They've been fighting on the economic front for some time, where the people of Pakistan have been suffering from तारीखी महंगाई, तारीखी गुर्बत और तारीखी बेरोजगारी। और इस सिलसिले में हुकूमत के पॉलिसीज के नतीजे में, फैसले के नतीजे में बहुत बेहतरी आई है। खास तौर पे महंगाई जिस उस तरीके से उसमें इजाफा नहीं हो रहा है, तो उसका हम वेलकम भी करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। वज़ीर ख़ज़ाना साहब यहाँ बैठा है, मैं बार बार कहता आ रहा हूँ। और a budget is just not columns and numbers, it's also a statement of national resolve and vision. While the budget may not be perfect, it has incorporated some, if not all, of the Pakistan People's Party input, and my party will be supporting the federal budget. Last year, Mr. Speaker, the Pakistan People's Party was not timely consulted, and I want to thank the Prime Minister, the Foreign Minister and the Finance Minister for engaging with consultations with the Pakistan People's Party this time round. In line with our consultations, there are some positive aspects of the budget which I would like to appreciate on the floor. जो हमारा दिफाई बजट में 20% इजाफा हुआ है, अब ideally, in an ideal world, मैं तो चाहता कि अगर 20% डिफेंस स्पेंडिंग में इजाफा होना है तो नॉन कॉम्बैट डिफेंस स्पेंडिंग जो है उसमें कटौती करके हम ये करते हैं। बट एक्स्ट्राऑर्डिनरी टाइम्स कॉल फॉर एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेजर्स, और जिस तरीके से भारत आज तक कह रहा है कि ये सीज फायर नहीं, ये पॉज है, भारत आज तक कह रहा है ये ट्रेलर था, बाकी मूवी आगे आपने देखना है,
उनका वजीर आजम कह रहा है पाकिस्तान के नौजवानों को कि रोटी खाओ वरना मेरा गोली खाओ। इस सूरत हाल में पाकिस्तान और हमारा सिंतास मुआहिदा तोड़ने का ना सिर्फ उन्होंने धमकी की है, उनका वजीर ने कल भी कहा कि इसको हम बहाल नहीं करेंगे। तो इस सूरत में पाकिस्तान ने जरूर उस जंग का तैयारी करनी है। तो इस सिलसिले में उस तरीके से हमारा बजट में, डिफेंस बजट में इजाफा हुआ है। In addition to that, in line with consultation with the Pakistan People's Party, जो 20% इजाफा हुआ है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में, मैं इसका ना सिर्फ तारीफ करता हूँ, मैं वेलकम करता हूँ, अप्रिशिएट करता हूँ। हमने वाज़ेह एक पैगाम भेजा है कि जी हम अपना दिफाई बजट में भी इजाफा तो कर रहे हैं, मगर जो इस मुल्क के गरीब तरीन लोग हैं उनको हम भूल नहीं रहे हैं। और वहाँ जो 20% उतना ही इजाफा हुआ है, ये मैं वज़ीर आज़म साहब को और उनकी पूरी टीम का शुक्रगुजार हूँ कि ये ना सिर्फ एक बहुत बड़ा इजाफा है पर एक पावरफुल सिग्नल है that we will continue to look after the most impoverished in our society. The Pakistan People's Party has always advocated for the rights of working people. हमने हमेशा कहा है कि मेहनत कश पे टैक्स ज़्यादा है, अब टैक्स अमीरों पे लगा दे, मेहनत कशों पे जो बोझ है बहुत ही ज़्यादा है। और वर्कर्स के लिए हमने हमेशा जो तनख्वाह है, जो पेंशन्स है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब खुद वफाकी हुकूमत की सरबराही संभाल रही थी 2008 से लेके 13 तक, हमने तारीखी इजाफा किए थे पे में और पेंशन्स में। और इस दफा मैं समझता हूं कि एक जो बहुत बड़ा कामयाबी है जो हमसे अपने कंसल्टेशंस में शेयर भी किए, एंड इट्स बीन रिफ्लेक्टेड इन द बजट, कि सैलरी क्लास पे, मेहनत कशों पे जो टैक्स लगाया जाता था, पहले जो ब्रैकेट था, द लोअर एंड ब्रैकेट जिसके नीचे आपको कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ता, वो 6 लाख का था। और इस बजट ने, हुकूमत ने अब 10 लाख बना दिया। मतलब अगर आप 10 लाख तक आपका कमाई है सैलरी क्लासेस का, उन पे 0 टैक्स होगा जनाब स्पीकर। ये एक तारीखी रिलीफ है फॉर द सैलरीड क्लास इन पाकिस्तान, एंड मैं फाइनेंस मिनिस्टर को, वजीर आजम का शुक्रगुजार हूं कि इतना बड़ा फैसला लिया गया है। साथ साथ जो तनख्वाह है, जो पेंशन्स है, हम चाह तो ये रहे थे कि मज़ीद इजाफा किया जाए, और मगर चले उतना नहीं हो सका, लेकिन कुछ तो हो सका। और मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि हुकूमत ने 10% इजाफा किया है तनख्वाह में और 7% इजाफा किया है पेंशन्स में। इट्स एट लीस्ट एक पॉजिटिव जेस्चर टू द वर्किंग पीपल ऑफ पाकिस्तान के इनको हम मदद देने की कोशिश कर रहे हैं मुश्किल हालात में। जनाब स्पीकर, कुछ ऐसे ख्वाहिशात थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो हम चाह रहे थे मगर हम इस बजट में वो नहीं हासिल कर सके, मैं उन पर जरूर बात करना चाहूंगा। मेरे टीम को जब मैंने हुकूमत से कंसल्टेशन शुरू की, मैंने उनसे रिक्वेस्ट ये किया कि जो PSDP है पंजाब का, उसमें जनूबी पंजाब को 30% जो उनका हक है, उनका शेयर है, वो दिलवाया जाए। इसलिए पिछली बार जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत में थी तो उस इलाके के असासी महरूमी दूर करने के लिए हमने इंश्योर किया कि सालों साल हमारा बजट में जो PSDP है, साउथ पंजाब का जो शेयर बनता है 30%, 31 एग्जैक्ट जो परसेंटेज है, उनका हक अपना परसेंटेज के लिहाज से उनको दिलवाया जाए। जबकि इस बजट में जिस स्टेज पे हम नेगोशिएट कर रहे थे वो नामुमकिन बना, मगर वजीर आज यहाँ बैठा नहीं है, मगर उनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने हमें ये वादा किया कि अगले बजट के लिए वो हमारे साथ पहले से बैठेंगे और इंश्योर करेंगे कि हम इस डिस्क्रेपेंसी को मजीद बेहतर करें और जनूबी पंजाब के जो परसेंटेज है उनको दिया जाए। एक दूसरा जो हमारा ख्वाहिश था, आज भी ख्वाहिश है, इस बजट में उस तरीके से हम इसको कवर नहीं कर सके, आने वाले बजट में हम देख लेते हैं कि कैसे हो सकता है, कि हम चाह रहे थे कि इसलिए कि पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान दहशतगर्दी के फ्रंट लाइन स्टेट्स हैं, और दुनिया की तारीख में आप उठा के देख लें, देयर इज नेवर बीन अ सक्सेसफुल काउंटर इंसर्जेंसी बैटल जिसमें आपने हार्ट्स एंड माइंड्स का सिलसिला, यू डिडंट विन द हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ द पीपल,
ये एक बेसिक फॉर्मूला है। अगर आप वियतनाम का जंग भी देख ले तो वो कहते हैं कि वहां भी तमाम कुव्वतें इसलिए हार चुके कि वो हार्ट्स एंड माइंड्स नहीं जीत चुके। और यही रिफ्रेम पूरा सीटी की जो पॉलिसी बना है दुनिया भर में 2001 के बाद, इसके पीछे ये एक बहुत बड़ा सेगमेंट है जो अनफॉर्चुनेटली इज कॉन्स्टेंटली लैकिंग इन आवर फॉर्मुलेशन। और आज भी हमारा यह ख्वाहिश था कि बलोचिस्तान और पख्तूनख्वा को, उनकी सूबाई हुकूमतों को वफाकी हुकूमत फेडरल फंडिंग की सूरत में सपोर्ट करे, ताकि हम स्पेशली पख्तूनख्वा के अवाम और बलूचिस्तान के अवाम जो सबसे ज़्यादा मुतासर है दहशतगर्दी के नतीजे में, उनको ख़ास मदद कर सकें। वो हम जिस तरीके से करना चाह रहे थे इस दफ़ा नहीं हो सका। मैं अपील करता हूँ वज़ीर आज़म से आज भी कि चले बजट तो पास होगा, बट आप हम सब मिल के बैठे एक ऐसा स्ट्रैटेजी बनाएं जिसके नतीजे में हम पूरा तैयारी करें कि इन दहशतगर्दों को हम जंग की बुनियादों पे भी और sort of kinetic लिहाज से भी उनको हरवा सके। मगर we have to have a hearts and minds strategy that wins over the hearts and minds of the people who we've deprived, feel dispossessed and are taken advantage of, and provide the cannon fodder to very terrorists to attack Pakistan डे इन डे आउट। खास तौर पे इसलिए अब भारत खर्च कर रहा है। जब भारत खर्च कर रहा है दहशतगर्दों पे बलोचिस्तान में और पख्तूनख्वा में, तो हमें भी सोचना चाहिए कि कैसे हम बेहतर अपना रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर सकते हैं और वहां के अवाम को हार्ट्स एंड माइंड जीत सकते हैं। एक सेक्टर जिसमें मैं थोड़ा मायूस हूं कि हम कामयाब नहीं हो सके, तो ये बहुत जरूरी है, वो हमारा ज़राई शोबे है। जनाब स्पीकर, ज़राअत हमारे मीशत का बैकबोन है और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारा हुकूमत की पॉलिसीज ही हमारा बैकबोन को तोड़ रहा है, मीशत का बैकबोन को तोड़ रहा है। हमारा इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के लिए, हमारा फूड सिक्योरिटी के लिए हमें ज़राअत में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। एग्रीकल्चर सेक्टर में गैर मामूली इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। मगर जनाब स्पीकर, वफाकी हुकूमत ने IMF के कंधों को इस्तेमाल करके तमाम सूबाई हुकूमतों को मजबूर किया कि ऐसे इक़दामात हम उठाए ज़राई शोबे में जिस पे हम प्राइवेटली भी तनकीद करते आ रहे हैं, पब्लिकली भी इनको मनाने की कोशिश करेंगे कि इस पे हम नजरसानी करें। दे फोर्स्ड अस कि आप एक तो जो एग्रीकल्चर टैक्स है कलेक्शन पे फोकस करने के बजाय इतना ज्यादा इजाफा इतना जल्दी किया गया है कि इसका तो नुकसान ही नुकसान होना दोनों तरफ, कलेक्शन में भी और इनको डिस्करेज करने में भी। खास तौर पे जनाब स्पीकर, हमें मजबूर किया गया कि हम सपोर्ट प्राइस भी ना सेट करें, साथ साथ हमें पाबंद किया गया कि हम अपने किसानों से प्रोक्योर भी ना करें। तो किसान जाएं तो कहां जाएं जनाब स्पीकर? इस वक्त जो नुकसान हमारे अपने पॉलिसीज के नतीजे में हुआ है, मैं कम से कम उसको जस्टिफाई नहीं कर सकता। हमें इसको रिव्यू करना पड़ेगा। ये शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म में जो हमारा नुकसान हो रहा है, हमें इसको दुरुस्त करना पड़ेगा। मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल पे गौर दिलवाना चाहूंगा। इन डिसीजंस के नतीजे में जो नुकसान हुआ है हमारा व्हीट क्रॉप को जनाब स्पीकर, पूरा मुल्क का, वो तकरीबन 800 बिलियन रुपीस ऑफ डैमेज पूरे पाकिस्तान के व्हीट क्रॉप, सिर्फ व्हीट क्रॉप के अगर आप फिगर्स देख लें, हुआ है। सिंध का नुकसान मैं आपको बताना चाहूंगा। Sindh's total loss for the wheat farmers of Sindh has been 150 billion rupees. उसमें से लड़कानों के किसानों का 24 billion rupees lost, सखर के 26 billion lost, शहीद बेनजीराबाद 30 billion loss, हैदराबाद डिवीजन 22 billion loss, मीरपुर खास 10 billion loss, कराची 12 crore loss, and Thatta and Sajawal 4 billion loss. इससे ज्यादा जनाब स्पीकर पंजाब की बात करते हैं। पंजाब के फार्मर्स का लॉस कितना है? 622 बिलियन। भावलपुर अलोन 109 बिलियन रुपीस लॉस्ट। डीजी खान 88 बिलियन रुपीस लॉस्ट।
Multan 29 billion rupees lost, Sahiwal 38 billion rupees lost, Faisalabad 79 billion rupees lost, Sargodha 58 billion rupees lost, Rawalpindi 28 billion rupees lost, Gujarat 46 billion rupees lost, Gujranwala 42 billion rupees lost, और Lahore 57 billion rupees lost. जनाब स्पीकर, हमने किसानों को जवाब देना है। इस वक्त किसानों का मुआशी कत्ल हो रहा है। मैं अपील करता हूं जनाब स्पीकर आपके थ्रू वजीर आजम को कि एग्रीकल्चर इमरजेंसी डिक्लेयर किया जाए। इस एग्रीकल्चर इमरजेंसी के थ्रू जो सूबाई हुकूमतें अपने कोशिशें कर रहे हैं, उन कोशिशों को आप मजीद सपोर्ट कर सकते हैं फेडरल फंडिंग के साथ। हम मिल के इन किसानों को वो रिलीफ पहुंचाएं जो उनकी ज़रूरत है, ताकि हम अपनी मीशत को बचा सके, अपनी बैकबोन को, मीशत की बैकबोन को बचा सके, और ये जो नुकसान है हम इनको फ़ायदा में तब्दील कर सकते हैं। जब पीपल्स पार्टी की हमने इन्हीं टूल्स जो आपने बैन किया, इन्हीं टूल्स को इस्तेमाल करके जब सदर ज़रदारी पहली दफ़ा सदर बना था, तो हमने जो सपोर्ट प्राइसेस है जो अब उन पे पाबंदी है, उनमें इजाफा करके हमने पाकिस्तान को एक फूड इनसिक्योर नेशन, एक नेशन जिसने वीट को इंपोर्ट करता था, राइस को इंपोर्ट करता था, शुगर को इंपोर्ट करता था, एक साल के अंदर ही अंदर हमने वीट भी एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया, राइस भी एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया, और शुगर भी एक्सपोर्ट करना शुरू किया। और ये कैसे किया कि जब आपके किसान खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकते या उनका नुकसान होता है, तो फिर हुकूमत मजबूर हो जाता है, उनको फिर डॉलर्स में बाहर से खरीदना पड़ता है। तो पाकिस्तान के टैक्स का पैसा इस्तेमाल करके फिर हम यूक्रेनियन फार्मर्स को फायदा पहुंचते हैं, उनका हम क्रॉप खरीद सकते हैं। सदर ज़रदारी ने वो पहले साल में ये फैसला किया कि वही पैसा जिससे हम डॉलर्स में बाहर से खरीदते थे, हम उसको रुपीज में अपने किसानों की जेब में डाल के उन्हीं से खरीद के अपना मीशत को फ़ायदा पहुंचाएंगे। और मेरा रिक्वेस्ट ये है कि आप इस इमरजेंसी को समझें और इन आपका फैसलों पे भी नज़रअंसारी करें, और मज़ीद सोचें हम कैसे अपने एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जनाब स्पीकर, कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स इस बजट के थे जो हमारे कंसल्टेशंस के बाद भी ऐसे तब्दीलियाँ आई थे जो हमारे लिए मुश्किलात पैदा कर रहे थे, और उसमें भी मैं बहुत मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा वज़ीर आज़म का, इसाक डार साहब का, और फाइनेंस मिनिस्टर था कि इन्होंने दिन रात हमारे टीम के साथ एंगेज करके हर पॉइंट पे हम कॉम्प्रोमाइज़ पे आ चुके हैं। एक तो जो हुकूमत का पहला प्रपोजल था डिजिटल टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एतराज़ात थे, और मैं शुक्रगुजार हूँ हुकूमत का कि हमारे एतराज़ उठाने के बाद जो डिजिटल टैक्स ऑन सर्विसेज है जो गैर आईनी होता, अगर वो लागू होता, वो अब नहीं होगा। हुकूमत इस मौके इससे अब पीछे हटे हैं, और डिजिटल टैक्स ऑन सर्विसेज विल बी लेफ्ट टू द प्रोविंसेस। हुकूमत ने फैसला किया तकरीबन 20% उन्होंने टैक्स लगाना था सोलर पे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेरे नुमाइंदे के बहुत सख्त एतराज़ात थे इस पे, इसलिए हमारे अक्सर इलाके में, ज़्यादातर इलाके जहाँ से हम मुंतखब होकर आए हैं, 16 घंटे 20 घंटे तक लोड शेडिंग होता है, लोग मजबूरन ये सोलर इस्तेमाल करते हैं। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू द गवर्नमेंट कि हम इस टैक्स को आधा किया है, और अब 10% टैक्स लगेगा। हमारा ख्वाहिश ये होगा कि आगे जाके हम इस टैक्स को मज़ीद कम करें, और जो ग्रीन एनर्जी ऑप्शंस हैं उनको कम से कम टैक्स किया जाए, ताकि हम उनको इंकरेज करें। मैं जानता हूँ कि बहुत बड़े लॉबीज़ है जो पहले भी चाहते थे, आज भी चाहते हैं कि हम एडिक्टेड हो फॉरेन हाइड्रोकार्बन्स पे, मगर पाकिस्तान को इसको अपने ग्राउंड पे खड़ा होकर रेजिस्ट करना पड़ेगा। एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट द गवर्नमेंट हैज ब्रॉट द सोलर टैक्स डाउन बाय 50% आफ्टर डिस्कशंस विद द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। एक और आई थिंक खास मोहब्बत है हमारे, आज मौजूद नहीं है वरना मैं ज़रूर उनके सामने शिकायत करता, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और हुकूमत के बातचीत के बाद अचानक प्लानिंग डिपार्टमेंट ने सिंध का जो हायर एजुकेशन बजट है उसको आधा कर दी जनाब स्पीकर, मतलब 50% कट। उस सूरत में आप हमें बहुत मुश्किल में डाल दिए गए, मगर हम बहुत शुक्रगुजार है ना सिर्फ वज़ीर आज़म का, डार साहब का, फाइनेंस मिनिस्टर का,
कि इन्होंने नेगोशिएट करके बातचीत करके वो पूरा वापस कर दिया है एंड अब उतना ही रखा गया है जितना वादा किया गया था। मैं समझता हूं कि यही फर्क होता है जनाब स्पीकर मुस्बत सियासत में और नेगेटिव सियासत में। You can do opposition for the opposition's sake or you can oppose for a cause. और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक्सपीरियंस रहा है कि चले हम कैबिनेट में मौजूद नहीं है लेकिन हम कौम के नुमाइंदे हैं, हम इधर मुंतखब होकर आए हैं उनके वसाइल पे बात करने के लिए, हुकूमत से सियासी तौर पे जमहूरी तौर पे इंगेज करके हम अपने जो ख्वाहिशात है या अपने जो अवाम के मुतालबे हैं वो हुकूमत तक पहुंचा सकते हैं। और उस तरीके से इस बजट में ऐसे ऐसे चीज़ें शामिल कर चुके हैं जिससे मैं अब खुशी के साथ हुकूमत के साथ वोट करूंगा। और मैं ऑपोजिशन से भी या ऑपोजिशन में बैठे हुए जमातों से भी अपील करता हूं कि जब तनकीद करना आपका हक होता है आप तनकीद करें। यह भी एक रास्ता है कि अगर ऐसी जगह है जहां आप समझते हैं कि कोई मुस्बत तब्दीलियां आ सकते हैं तो आप हुकूमत से बात कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं और हम एक पॉजिटिव प्रपोजल्स हुकूमत के सामने लेकर आ सकते हैं जिसका फायदा वहां हो सकता है जहां आप मुंतखब होके यहां आके बैठे हैं, जहां आपका रोल है बतौर ऑपोजिशन कि आप ऑपोजिशन करें। वहां आपका जिम्मेदारी है खास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा में जहां आपका सूबाई हुकूमत है कि आप अपना अवाम को वो हक पहुंचाएं। मैं समझता हूं कि इंशाअल्लाह ताला वो अपना स्ट्रैटेजी अगर तब्दील करेंगे तो ना सिर्फ पीटीआई का फायदा होगा, पूरा मुल्क का फायदा हो सकता है। हर चीज पे जनाब स्पीकर उनका एक ही मुतालबा होता है, एक ही इशू होता है। अगर आप एग्रीकल्चर की बात करें उनका कोई दिलचस्पी नहीं है, वो सिर्फ कहते हैं कि कैदी को रिहा करो। आप अगर दहशतगर्दी के लिए हादसन माइंस पे चाहते हो कि दहशतगर्दी के मुकाबला करने के लिए अवाम को कोई फायदा मिले, वो कहते हैं नहीं कैदी को रिहा करो। हम कहते हैं कि दहशतगर्दों का मुकाबला करना है, बलोचिस्तान में 9 बम धमाके हुए, कैदी को रिहा करो। हम कहते हैं कि भारत ने जंग छेड़ा है, जंग का माहौल है, हमने जंग लड़ रहा है, नहीं कैदी को रिहा करो। पाकिस्तान के अवाम जरूर एक हिस्सा जो अपने आप को आपके वोटर्स आपके वर्कर्स समझते हैं उनका ये मुतालबा होगा, लेकिन बाकियों का ये मुतालबा नहीं है। इनका तो ये दूसरा मुतालबा है कि उनको वहीं की वहीं रखें। तो इस मुतालबा के साथ साथ मेरा अपील है कि अवाम के इश्यूज को भी उठाएं। शायद अगर आप इस इशू के अलावा कोई इश्यूज उठाएंगे तो शायद आपको नजर आएंगे कि इधर भी और इधर भी आपके कुछ लोग मिलेंगे जो उन इश्यूज को, अवाम के इश्यूज को सपोर्ट करने के लिए तैयार होंगे। जनाब स्पीकर, कंक्लूड करने से पहले मैं एक जरूर इस बात पे गौर करना दिलवाना चाहूंगा कि जो भारत ने ये ऐलान किया इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से, जो सिंधु पे मोदी ने हमला किया है, इसका दफा करना हर पाकिस्तानी का, हम सबका जिम्मेदारी है। और मैं हुकूमत से अपील करता हूं कि जो भी फैसले वो लें, चाहे वो फॉरेन पॉलिसी के लिहाज से या अंदरूनी लिहाज से, उनको इंश्योर करना चाहिए कि पाकिस्तान का केस इंडस वाटर ट्रीटी में मजबूत किया जाए, कमजोर ना किया जाए। बहुत जरूरी है कि हम ये इंप्रेशन ना दे कि पाकिस्तान इस थ्रेट को कोई इजी ले रहा है। भारत ने जो ऐलान किया और उसके बाद इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से 2-3 दफा अब इन्होंने जो इनका जिम्मेदारी थे वो पूरा नहीं किए। उनको जरूर हमें ना सिर्फ एहतजाज करना चाहिए अप्रोप्रिएट फोरम्स पे, मगर इंडस वाटर ट्रीटी के जरिए ही उनको चैलेंज करना चाहिए। हमें ऐसे कोई कदम नहीं उठाना चाहिए पाकिस्तान के अंदर जिससे ये मैसेज जाए भारत को कि हमने तो कबूल किया है कि आप ये करने जा रहे हैं। मैं जानता हूं कि एक लॉबी है इस मुल्क में, जैसे ये चाहते हैं ना कि हर इशू के पीछे वो कैदी को रिहा करो, तो एक दूसरा लॉबी है जो समझता है, जो चाहते हैं, जो एक दूसरा लॉबी है जो हर मसला का हल डैम बनाना समझता है। तो जनाब स्पीकर, हम समझते हैं कि बिल्कुल जहां फाइनेंशियली, सियासी और टेक्निकली बुनियाद पे बनता है डैम बनाए। हमने भी बनाए हैं दोनों तरीके से। लेकिन जहां हम खड़े हैं इस वक्त,
जहां भारत ने यह ऐलान किया है कि हम इंडस वाटर ट्रीटी को नहीं मानते, और भारत ने ऐलान किया है कि वो कभी उसको कबूल नहीं करेंगे, और धमकी या इशारे दे रहे हैं कि वो भी शायद कोई डैम बनाएंगे या कोई कनाल निकालेंगे। अगर पाकिस्तान का ये लॉबी हमें मनाता है कि हमें भी कोई ऐसा कदम उठाना पड़ेगा, तो ये बहुत बड़ी गलती होगा जनाब स्पीकर। इसका मतलब ये होगा कि जिस जंग का हम कह रहे हैं ना कि ये अगर करते हैं, अगर भारत अमल दरामद करता है तो हम जंग करेंगे, ये जंग लड़ने से पहले शिकस्त मानने की बात है। मैं हुकूमत की ये पॉलिसीज इस बजट में, जिन्होंने जो अप्रूव डैम्स हैं, जो गैर मुतनाज़ा डैम्स हैं, जो टेक्निकली साउंड डैम्स हैं, उनके लिए जो फंडिंग रखा है, मैं उनके साथ देता हूं, उनको सपोर्ट करता हूं और एडवाइस ही कर सकता हूं कि ऐसा कोई गैर जिम्मेदाराना या गैर सोचा समझे ऐसा फैसला या ऐलान ना करे जो मजीद मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। हमने देखा और हम समझते हैं वैसे ही भारत ने अगर इंडस वाटर ट्रीटी को मानना है या नहीं मानना है, अमल दरामद करना है या नहीं करना है, हम वैसे ही पानी की किल्लत के शिकार हैं। और उस पानी की किल्लत को मौसमी तब्दीली के सामने रखते हुए हमें फ्लड इरिगेशन से स्मार्ट इरिगेशन की तरफ जाना पड़ेगा। पाकिस्तान रूस के बाद सबसे बड़ा जो इरिगेशन नेटवर्क है वो पाकिस्तान का है। फ्लड इरिगेशन का तरीक़ाकार हम इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेके आज तक इस्तेमाल कर रहे हैं जनाब स्पीकर। जब दुनिया भर में पानी का इतना कदर होता है कि एक एक ड्रॉप को गिना जाता है, इट मेक्स नो सेंस कि सालों साल पाकिस्तान फ्लड इरिगेशन पे ही ये हम जोर देते हैं। अगर हम आज इन्वेस्ट करते हैं इस ट्रांजिशन में, आज इन्वेस्ट करते हैं तो कल के लिए हमारे तैयारी होगा। अगर हम लेट हो गए, बाद में जो पानी की इतना किल्लत है तब सोचते हैं, तो perhaps it will be too late. I request the government कि आप सूबाई हुकूमत के साथ मिल के इस पे बात करें। We're happy to do provide our share of funding आपके साथ मिल के, खास तौर पे ये जो फार्मिंग के मंसूबे हैं और ये दूसरे मंसूबे जो हम करने चाह रहे हैं, हम स्मार्ट इरिगेशन के थ्रू अगर हम स्मार्ट इरिगेशन करते हैं तो जहां हमारा इस वक्त आबाद इलाके हैं, जहां एग्रीकल्चर चल रहा है, उनको भी फायदा पहुंचा सकते हैं, और जो चोलिस्तान और थर के इलाके हैं, बचा हुआ पानी को स्मार्ट इरिगेशन के जरिए हम वहां पहुंचा सकते हैं। आगे जनाब स्पीकर, मैं वजीर आजम साहब का, उनकी पूरी टीम को का शुक्रिया भी, उनको मुबारकबाद देना चाहूंगा कि हर फोरम पे, हर महाज पे, जंग के मैदान में, सिफारती मैदान में और बयानिया के मैदान में भारत हार चुका है, पाकिस्तान जीत चुका है। पाकिस्तान जिंदाबाद।